Hello everybody, welcome back to my channel Judiciary Possible. My name is Ayushi Dubey and the channel name is Judiciary Possible. We'll make it possible. So from till today we have completed in section 9. We are covering Civil Procedure Code in a sequence manner. Today I am going to cover section 10 of the code. But before moving forward with the video, I would like you to please like my video, share it with your friend and subscribe to the channel if you like the content of the videos. Okay, now we'll move forward with the video. Today we will cover section 10 of the Civil Procedure Code 1908. Okay, section 10 says about res sub judice. Okay, now two things, it is mostly asked in the prelims examination, and in the main examination what they do is they combine it with the res judicata, which is given under section 11, and they mostly ask the difference between the two. What I'll do is I'll write the difference and I will post it on my Telegram channel. You can go and subscribe to the channel at Telegram. I will link it in my description section and you'll find the PDF there itself. Okay, now section 10. Section 10 deals with res sub judice. It is mandatory in nature and it prevents the trial. It prevents the trial and not the institution of the subsequent suit. What I'll explain it in a simple manner. What it does it कि दो सूट्स होते हैं सेम कॉज ऑफ एक्शन पे. जो पहला सूट होता है वो पेंडिंग नेचर का होता है और पेंडिंग हो रहा होता है, और जो फिर सेम कॉज ऑफ एक्शन पे जो है पार्टी एक नया सूट ला देती हैं. तो व्हाट कोर्ट डज इज कि वो जो नया सूट होता है, जो नया सब्सिक्वेंट सूट होता है, उसको जो है उसका इंस्टीट्यूट होने देती हैं मगर उसका ट्रायल रोकी रखती हैं. तो ऑब्जेक्ट क्या है सेक्शन का? दो चीज़ें हैं कि पैरेलल लिटिगेशन को रोकता है एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट इज टू स्टॉप द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग. बर्डन कोर्ट पे एक ही चीज़ पे बार बार केस आएगा तो हम एंड कैसे करेंगे केस को? देयर नीड टू बी एन एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक. ओके, यू अंडरस्टैंड? So what it says, I'll repeat it in English also for everybody, that it bars the trial of the subsequent proceedings, subsequent cases, but it does not bars the institution of the case if the previous case is pending in nature. What happens in res judicata is कि वहाँ पे केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होता है प्रीवियस का और सब्सिक्वेंट केस फाइल हो रहा होता है. पहला वाला डिसाइड हो चुका होता है. रेस सब जुडिस में पहला वाला भी अभी पेंडिंग नेचर में होता है. ओके, नाउ विल मूव फॉरवर्ड विद द कंडीशन. क्या क्या कंडीशंस होती हैं टू कम इन द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 10? First condition is there must be two cases, two suits. One is previously instituted and another is subsequently instituted. The second one is the matter, the issue on which the case is filed, case is instituted, must be directly and substantially in issue. It must be directly and substantially in issue. It must be between the same parties and the title must also be same. दो अलग points हैं. Same parties होती हैं. सेकेंड पॉइंट है टाइटल भी सेम होता है. मतलब कि अगर मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी के बीच में तो उनका टाइटल सेम रहेगा, मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी ही रहेगा. वो फिर वो मॉर्टगेजी नहीं बन जाएगा मॉर्टगेजर, या कोई दूसरा टाइटल पे नहीं आ जाएगा. सेम टाइटल होना चाहिए. ठीक है. द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट मस्ट बी पेंडिंग इन नेचर. वो पेंडिंग होना चाहिए. एंड जो कोर्ट होता है, नेक्स्ट पॉइंट है, जो कोर्ट होता है वो उसके पास वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए और उसके पास जुरिडिक्शन होना चाहिए दोनों केसेस को डील करने के लिए. विदाउट जुरिडिक्शन होगा तो ऑब्वियसली रेस सब जुडिस नहीं लगेगा. इट मस्ट हैव द जुरिडिक्शन टू ट्राई द केस. ओके, एज आई टोल्ड यू दैट इट इज मैंडेटरी इन नेचर. एंड द लास्ट पॉइंट विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर रेस सब जुडिस इज कि अगर कोई केस पेंडिंग नेचर का है मगर फॉरेन कोर्ट में है तो वो इंडियन कोर्ट को बार नहीं करता है सेम कॉज ऑफ एक्शन पे उस सूट को ट्राई होने से. यहाँ पे ट्रायल होगा. ठीक है. जनरल रूल क्या है कि ट्रायल को हम रोक देते हैं, बार करते हैं, मगर कोई केस अगर फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है तो इंडियन कोर्ट पे वो बार नहीं लगता है, वो उस केस का ट्रायल कर सकते हैं. ठीक है. बहुत ही सिंपल सा है.
2-3 चीज़ें जो बार बार पूछी जाती हैं कि कौन से सेक्शन में दिया रेस्ट सब्सिडिज। तो पहला है सेक्शन 10, क्या वो मैंडेटरी नेचर का होता है? हाँ, वो मैंडेटरी नेचर का होता है। उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं? बहुत ही सिंपल है, 2 केसेस होने चाहिए, कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसके पास ज्यूरिडिक्शन होना चाहिए दोनों केसेस के लिए, ठीक है। पार्टीज सेम होनी चाहिए, पार्टीज का टाइटल सेम होना चाहिए, और जो इश्यू है, जो मैटर है, वो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इश्यू होना चाहिए। और जो लास्ट जो ये उसका पार्ट जो लिटिगेट टाइटल तो मैंने बोल दिया, खैर। जो फॉरेन कोर्ट वाला है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि फॉरेन कोर्ट में अगर पेंडिंग होता है तो इंडिया पे बार नहीं लगता, इंडियन कोर्ट उसका ट्रायल कर सकते हैं। हाँ, लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल्दो वो बार करता है सब्सिक्वेंट सूट का ट्रायल, मगर इंटरिम रिलीफ हम उसको दे सकते हैं। कोर्ट उसका इंटरिम रिलीफ कर सकता है, उसको डिसमिस नहीं करेगा पर उस पर स्टे लगा सकता है, या कोई जैसे इंजंक्शन हुआ तो वो लगा सकता है, इंटरिम रिलीफ मिल सकती है। I think that is enough for the res sub judice. Tomorrow we'll cover, or the next video will cover res judicata. I hope you like my video, and if you do like the video, please do like the video, share it with your friends, and subscribe to my channel. Thank you so much.